Hello student, warm welcome on my channel. Already we have completed objective types of question of admission of partner as well as retirement of partner. Today we will see objective of dissolution of partnership firm. Most students ignore this objective types question, but please don't do that. These objective marks really help you to increase your percentage. So let's start. See here. This is our first question, objective type. Select most appropriate answer from the alternatives given below and rewrite the sentence. See here, you have to rewrite the sentence. So, first one, in case of dissolution, asset and liability are transferred to the dash account. Now, how many accounts we open in dissolution? Realization account, partners capital and bank. But now here they have not given any partners name, तो इसको तो हम skip कर देंगे. See here, so this will not come. See, these two will get skip. After that, now what left? These two left. So asset and liability transfer किया है, realize sold नहीं किया है. जब तक हम वो sold नहीं करेंगे तो cash का सवाल ही नहीं आएगा. So this will also go. So now what left? This is also will go. See here. Now this is also will go. Skip करना सीखो आप. This is also will go. See here. So now what left? Realization account. So your answer is realization account. Next we'll move. Dissolution expenses are credited. अगेन हमें यहाँ पे सेम एलिमिनेशन राउंड का ही यूज करना है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, सो पार्टनर्स नेम इज नॉट गिवन, सो सी दिस विल नॉट कम, सो ये स्किप हो गया है. देन पार्टनर्स हियर अगेन दे हैव गिवन, सो दिस विल आल्सो गो, तो ये भी आंसर नहीं आएगा हमारा. नाउ व्हाट लेफ्ट? ओनली रियलाइजेशन एंड कैश. सो क्रेडिटेड बोला है, क्रेडिटेड मतलब कैश अकाउंट is a real account, debit comes in, credit goes out. तो जब हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो हमारी कैश गोज आउट होगी. सो आवर आंसर इज कैश ऑब्लिक बैंक. हाँ, यही अगर कहा होता क्रेडिटेड की जगह डेबिटेड तो हमने कहा किया होता रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. जहां पे हमें प्रॉफिट और लॉस फाउंड आउट करना होता है वो सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये याद रखना है. ठीक है, तो तब अगर यहाँ पे डेबिटेड होता तो हमने आंसर ये सिलेक्ट किया होता. तो ध्यान से आपको पढ़ना है वेदर दे हैव गिवन डेबिटेड और क्रेडिटेड. नेक्स्ट थर्ड वन, efficiency of insolvent partner will be, see here, efficiency of insolvent partner will be suffered by solvent partner in their dash ratio, of course profit and loss ratio. हम हमेशा डेफिशिएंसी जो भी होगी, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से सीखा है, अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आपको ये आंसर आएगा. We'll move to the next. If any asset is taken by the partners from his capital, account will be dash. Of course, if any partner ने कोई asset लिया होगा तो debited होता है partners capital, because partner capital is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. So here asset taken by the partner, that means he is the receiver. So debited. Next one. If any unrecorded liability is paid on dissolution, dash account is debited. Of course now paid किया है कोई भी unrecorded, so ये कहाँ लिखते हैं हम लोग? Realization account. See here. अब ये एलिमिनेशन कैसे करना है? तो यहाँ पार्टनर्स का नाम तो दिया नहीं है, सो दिस विल नॉट कम. सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स का नाम नहीं दिया है तो पार्टनर्स का नाम तो नहीं आएगा. लोन अकाउंट सेम पार्टनर्स का ही होता है, सो ये भी नहीं आएगा. सो व्हाट लेफ्ट? कैश एंड बैंक या रियलाइजेशन. सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड. डेबिटेड क्या होता है? तो रियलाइजेशन. और क्रेडिटेड क्या होता है? तो कैश, बिकॉज कैश गोज आउट. तो अगर यहाँ पे उन्होंने क्रेडिटेड पूछा होता तो हमने आंसर लिखा होता कैश ऑब्लिक बैंक, बट यहाँ पे उन्होंने डेबिटेड पूछा है, सो विल राइट रियलाइजेशन. एलिमिनेशन की आप स्किल सीखो, आपको एक बहुत सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे. Next one, partnerships complete dissolve when the partners of the firm become, of course पूरा dissolve जब होता है, कब? जब वो insolvent होता है. देखो डेटर्स क्रेडिटर की कंसेप्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, सवाल ही नहीं पार्टनर्स क्रेडिटर्स डेटर्स की, तो ये तो पूरा के पूरा रॉन्ग है.
सॉल्वेंट मतलब क्या, व्हेन असेट इज मोर देन द लायबिलिटी, ये तो अच्छी बात है, तो क्यों भैया वो बंद करेगी अपनी डिसॉल्व इतनी अच्छी पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये भी आंसर नहीं है। सो क्या हो गया, रह गया हमारे पास इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट, asset and liability transfer to realization account at their of course always बुक वैल्यू, जो बुक में होती है, बुक मतलब ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन आप कैसे ध्यान में रखोगे कि हम लोग जब क्वेश्चन पेपर देखो हमने सॉल्व किया है, बुक के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो जो बुक में उन्होंने ओल्ड बैलेंस शीट में दी थी वही हमने ट्रांसफर की थी रियलाइजेशन में। ओके, सो द आंसर इज बुक वैल्यू। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। if number of partner in the firm falls below 2, the firm stand dash, now see below 2, हमारे पार्टनरशिप की मेन कंसेप्ट ही क्या है, मोर देन 2, है ना, मिनिमम 2, मोर देन 2, देन ओनली पार्टनरशिप फर्म गेट एस्टैब्लिश। सो हियर अगर एक भी दो में से एक भी पार्टनर्स कम हो गया तो ऑफ कोर्स फर्म क्या होती है, डिसॉल्व। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट। सो ऑफ कोर्स जब हम असेट सोल्ड करते हैं तो चाहिए तो रफ में आप करके देखो, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करो, जब हम ट्रांसफर करते तो डेबिट में करते हैं, और जब उसको बाहर निकालना होता है, सोल्ड करना होता है, तो वो हम क्रेडिट में करते हैं। ठीक है, ये हमने सब प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से सीखा है। नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर सीज्ड ऑन डैश, ऑफ कोर्स सीज मतलब क्या होना, बंद होना, तो सब पार्टनरशिप की फर्म की जो भी एक्टिविटी होती है इमीडिएटली स्टॉप होती है, कब होती है, डिसोल्यूशन में होती है। ओके, ये बाकी केस में नहीं होती, बाकी की तो हम रिकंस्टिट्यूट करते, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट में हम लोग रिकंस्टिट्यूट फिर से सब रिवैल्यूट करते और फिर से हमारी न्यू फॉर्म स्टार्ट होती है, बट डिसोल्यूशन में सब एक्टिविटी बंद हो जाती है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए हैं कैसे लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट, रीराइट, फिर से आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म सीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। Don't write only dissolution, only credited, only dissolve. Okay. Now next, yes, give the one word. This is very simple. You have to write only one word. डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब क्या, जब डेबिट बैलेंस हेवी होती है तो हमें क्या मिलता है, ऑफ कोर्स लॉस मिलता है। सो लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये मैंने रिटायरमेंट में भी ऑब्जेक्टिव में क्लियर आपको किया है। व्हेन दे आस्क डेबिट बैलेंस, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट बैलेंस हेवी है, तो जब डेबिट बैलेंस मतलब एक्सपेंसेस की साइड जब हेवी होती है तो ऑफ कोर्स हमें वो लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी सिंपल, वाइंडिंग अप पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज अ डिसोल्यूशन। थर्ड वन, अकाउंट ओपन to find out the profit and loss on realization asset and settlement liability, very simple, it's a realization account. Debit balance of insolvent partners capital account, now again they have given the debit balance of insolvent partner, so that will known as a capital deficiency। ये आपके लिए शायद न्यू नहीं है, हमने प्रैक्टिकल में किया है बट बार बार हमने यूज नहीं किया है ये वर्ड, तो याद रखना है। डेबिट बैलेंस ऑफ इन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल इज अ कैपिटल डेफिशिएंसी, तभी उनका बैलेंस आता है जब उनकी कैपिटल कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन, सेम ईयर, यहाँ पे डेबिट बैलेंस पूछा था, यहाँ पे क्रेडिट पूछा है, दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या है, हेवी है। सो जब इनकम साइड हेवी होती तो ऑफ कोर्स विल गेट द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू कैश, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सिंपल, कन्वर्जन असेट करना है उसको ही हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ असेट। ये शुरुआत में ही मैंने जब सिखाया है थेरोटिकल पार्ट, तो वहां पे मैंने ये बोला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लायबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। इसकी तो मैंने नोट्स लिखवा के दिए, अगर आपने वीडियो देखे होंगे मेरे, तो डिसोल्यूशन में एक प्रॉब्लम में कंटीजेंट लायबिलिटी पूछी थी उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने नोट्स भी दी थी आपको कि ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में मे भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, asset which are not recorded in the books, no, unrecorded asset, देखो इसमें ही दिया है नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ही अनरिकॉर्डेड एसेट। नेक्स्ट, द अकाउंट विच शो रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ये कहाँ पे हम अकाउंट बताते हैं, ऑफ कोर्स अगेन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से सॉल्व किया है तो ये बहुत आसानी से आपको आएगा। नेक्स्ट, लास्ट वन, expenses incurred on dissolution of firm, again this is called realization expenses or dissolution expenses, either you can write these और दिस, कोई भी आप लिख सकते हो, आपका मार्क्स मिल जाएगी।
Now we'll move to the next slide. See here, state whether true or false with the reason. Here you have to give reason, you have to write the question, answer true or false, and then reason. The firm must be dissolved on retirement of partner. It's a very wrong, it's a false. So here you have to write, at the time of retirement partner we have to reconstitute our partnership firm, not to dissolve the firm. Next, on dissolution, cash and bank account close automatically. Yes, it's true. देखो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइनली जब कैश ऑब्लिक बैंक में ट्रांसफर करते तो वो टैली हो जाता है, ठीक है. सो यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे? बिकॉज हियर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स हैव टू sell all asset, and whatever they get the amount out of that they have to pay liability, so it get automatically closed. On dissolution, bank OD is transferred to realization account. It's true because this is also external liability, so we have to pay external liability first, so that is why we ट्रांसफर बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब हम जैसे क्रेडिटर्स को एक्सटर्नल लोन को जैसे ट्रीटमेंट देते थे वही हमें यहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट पे देनी है. A solvent partner having a debt balance to his capital account does not share the deficiency of insolvent partner. Again false. यहाँ पे तो solvent partners को क्या करना होती है? शेयर करना होती है उसकी जो भी डेफिशिएंसी होगी insolvent partner की. For example, A, B, C are the partners. C get insolvent तो A और B को जो भी कैपिटल डेफिशिएंसी होगी वो शेयर करना होती है as per profit and loss ratio. Okay. At the time of dissolution of partnership firm, all assets should be transferred to realization account. True. You can write here reason. At the time of dissolution of partnership firm, partners has to sell all assets to pay off the liability. That is why they have to transfer all assets to realization account. Next, debit balance of insolvent partners capital account is known as a capital deficiency. अभी हमने इसमें fill in the blanks में भी देखा था, ठीक है. Debit balance, that means debit heavy side है, तो automatically we get the capital deficiency. So this is true. At the time of dissolution, loan from partner will be transferred to realization account. Now think, हम क्या करते थे कि जब पार्टनर्स का लोन था तो हम अलग सेपरेट अकाउंट हम ड्रॉ करते थे, सो दैट टाइम वी नीड टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट. So this is a false. Next one, dissolution take place when the relation among the partners come to end. Of course, क्या होगा? यही होगा कि जब relation between two partners get ended, that time dissolution ही हमें करना होता है. The insolvency loss at the time of dissolution of firm is shared by the solvent partners in their profit sharing ratio. So no more again explanation क्योंकि अभी हमने profit and loss भी देखा था. Next one, realization loss is not transferred to insolvent partners. Very wrong. चाहे वो solvent हो या insolvent हो, realization loss हमें transfer करना ही होता है. कभी कभी realization profit भी हमें होता है, वो भी हमें partners में चाहे वो insolvent हो या solvent हो, we have to transfer. Okay, so I hope this you will get understand. Okay, we'll move to the next. Yes, now this is the new question for you. Calculate the following. Here they have given calculation and you have to do the calculation. Vinod, Vijay and Vishal are the partners sharing profit and loss. The ratio is given. Vishal become insolvent and his capital deficiency is 6,000. Distribute the capital deficiency among the solvent. अभी मैंने बताया था कि जो insolvent partner होता है उसकी जो भी capital deficiency होती है वो हमें क्या करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से सॉल्वेंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है. सो वेरी इजी, ले लो पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो क्या है. नाउ विनोद एंड विजय, इसमें से विशाल तो इंसॉल्वेंट हो गया है तो ये तो हम नहीं, सो विनोद एंड विजय. सो सी हियर, विनोद का रेशियो यहाँ पे दिया है कितना? 3 और टोटल क्या आ रही है 5, तो 3/5 इट्स कम 3600.
सेम अबाउट विजय, विजय का क्या दिया है उन्होंने, 2 रेशियो दिया है। सो 6000 कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी है, 6000 इनटू विजय का रेशियो 2, टोटल कितनी आती है 5, so it comes 2400. So Vinod will share 3600 and Vijay will share 2400. Very simple calculation. अगर आपने practical problem किया होगा तो ये आपको पक्का आएगा. Next, this is also very simple. See here, creditors 30,000, bills payable 20,000 and bank loan 10,000. Available balance only 40,000. What will be the amount that creditors will get in case of insolvency? See here, ये आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपको एफ वाई बीकॉम में भी है कि जब तीनों लाइबिलिटी देखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन, तीनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो हमें तीनों को पे करना है। ऐसे नहीं होगा कि पहले हम क्रेडिटर्स को पे करें, फिर बिल्स पेबल को, फिर बैंक लोन को, नो। तो हमारे पास कैश है 40,000 लेकिन पे तो कितना करना है, टोटल 60। तो अब हम पे कैसे करेंगे? सो सी यार, पहले आप यहाँ पे बैलेंस लिख दो सबके। क्रेडिटर्स 30,000 सी गिवन इन द क्वेश्चन, बिल्स पेबल, बैंक लोन। अब इनका रेशियो निकालो, कैसे होगा, 3:2:1। देखो सब ये 40 कट करो, ये 40 कट करो, ये 40 कट करो, तो उनका रेशियो आया 3:2:1। तो हम क्रेडिटर्स को ये रेशियो से देंगे। तो वेरी सिंपल, क्रेडिटर्स 30,000 इनटू क्रेडिटर्स का रेशियो क्या है 3 अपॉन ये सबकी टोटल कितनी आ रही है 6। सो क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे ओनली 20,000। देखो अगर आपने क्वेश्चन किया होगा लास्ट वाला डिसोल्यूशन का, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, तब अगर आपको याद होगा तो हमने सबके सेपरेट अकाउंट ओपन किए थे और जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे हमने पे कर दिया उन्हें। सो क्रेडिटर्स भले हमें पे कितना करना था 30,000, बट कैश उतनी अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको प्रो रेटा रेशियो, इसको बोलते हैं थ्री। हम जब ऐसे रेशियो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रो रेटा रेशियो। तो उस हिसाब से हमने ये निकाला, तो क्रेडिटर विल गेट 20,000। ओके अगर यही उन्होंने बोला होता बिल्स पेबल, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर्स उन्होंने बोला होता बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का रेशियो कितना है 2। सो 20,000 इनटू 2 अपॉन 6। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट, इट्स वेरी सिंपल, इंसॉल्वेंट कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड 10,000 है और क्रेडिट साइड 6,000 है, तो क्या करते हैं हम, डेबिट माइनस क्रेडिट। वेरी सिंपल, इट कम्स 4,000। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, डेबिट साइड हेवी है तो हेवी साइड में से हम लेस, जो कम वैल्यू है उसकी माइनस करते हैं साइड, तो 10,000 माइनस 6,000, इट कम्स 4,000। ओके, now we'll move to the next calculation. Insolvent partner's capital account, debit side it's 15,000. An insolvent partner brought cash 6,000. Calculate the amount of insolvency loss to distribution among the पार्टनर। नाउ हमें देखना है, देखो इसके लिए मैंने आपके लिए अकाउंट ही ओपन किया है, ठीक है, तो आप भी रफ में कर सकते हो अकाउंट, क्योंकि समझना है हमें क्या बोला है उन्होंने, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड इज 15,000। आई एज्यूम दैट सी इज इंसॉल्वेंट, सो सी का डेबिट साइड की टोटल कितनी आई है 15,000। एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ब्रॉट कैश 6,000 और इंसॉल्वेंट पार्टनर्स ने कैश कितनी लाया था 6,000। ठीक है, जब वो इंसॉल्वेंट होता है तो थोड़े बहुत तो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसे वसूल करना होते हैं, तो यहाँ पे 6,000 है। ओके, बिकॉज हियर सी इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर ने फर्म को कैश दी है, सो 6,000। तो कितना लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग सॉल्वेंट पार्टनर्स? सो देखो दिस साइड कम्स हेवी 15,000, लिखो 15 माइनस 6,000, सो इट्स कम 9,000। तो ये हमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉल्वेंट पार्टनर में। और कौन से रेशियो से, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से। और कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 9,000। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ओपन किया है। आप ये रफ में कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आप लिखोगे डेबिट साइड 15,000 माइनस कैश ब्रॉट 6,000 इज इक्वल टू अवेलेबल solvent balance is 9,000. Okay, next, realization of profit is 6,000. Partner share is ratio 3:2:1. Calculate the profit credited to partners. Very simple, आपको प्रॉफिट हुआ है 6,000 और वो हमें ट्रांसफर करना है 3:2:1 से। सी वेरी इजी, सबके निकालो आप 6,000
फर्म है, ये तो हमने सीखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, रेशियो है 3:2:1 और ये 6 क्यों लिया है, बिकॉज ये सबकी टोटल 6 आती है. So जो भी partners रह गए, name is not given, so we consider A, B, C. So A will get 3000, B will get 2000 and C will get 1000. I hope आपको ये कैलकुलेशन का पार्ट समझ में आया है. नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस. नाउ यहाँ पे आपको वन सेंटेंस है आंसर लिखना है. व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस वाइंड अप और क्लोज डाउन द बिजनेस. What is the realization, sorry, when is the realization account open? At the time of dissolution. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो all asset need to transfer to realization account. आप liability भी लिख सकते हो, all liability needs to transfer to realization account. But this answer is sufficient. We can open realization account at the time of dissolution. Now the third, which account are not transferred to realization account? Of course, internal liability. बाकी तो सब liability और असेट हम ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ पार्टनर्स का लोन दिया होगा तो उसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पार्टनर? ये तो 11 से पढ़ा है हमने. व्हेन पर्सन इज हैविंग अ मोर लायबिलिटी देन द असेट, ही इज कॉल्ड एज अ इंसॉल्वेंट. ओके, वन वन लाइन में ही लिखना है बिकॉज वन ही मार्क्स होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल डेफिशिएंसी? हमने 2-3 बार अभी जस्ट देखा हमने. कैपिटल डेफिशिएंसी मींस वन और मोर पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट. जब डेबिट बैलेंस हेवी होती है उनकी, तब वो होते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी. इन व्हाट प्रोपोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. तो आप लिख सकते हो कि ये रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स account at their profit sharing ratio. Who should bear the capital deficiency of insolvent? Of course, insolvent का कौन bear करेगा? Solvent partner. So you can write solvent partner should bear the capital deficiency of insolvent partner. ये give one sentence है तो आपको पूरा sentence लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना है solvent partner. Okay, आपको पूरा लिखना है solvent partners should bear the capital deficiency of the insolvent partners. Next, which account is debited on repayment of partners loan? Of course, partners loan account. हम partners loan account पे करने वाले हैं, तो लोन अकाउंट. ओके, ये कुछ कुछ है ना, आप पढ़कर जाना. एग्जाम के पहले भी एक दो बार ऐसे सर्कल करके रखो आपके टेक्स्ट बुक में, और ये एक दो चीजें जो अलग अलग कभी याद नहीं आती वो पढ़कर जाना है. नेक्स्ट, which account is debited on payment of dissolution expenses? Now of course debited realization account, because realization account is a nominal account. Debit the expenses, तो हम डेबिट में हमेशा क्या लिखते हैं? expenses. आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है. प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. नाउ दिस इज न्यू कंसेप्ट, कंप्लीट द टेबल. बहुत इजी है, दिखने में हमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगता है, बट डोंट वरी, सिंपल दिया है. ध्यान से देखो. डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन इट कम्स 20,000. मतलब डेबिट साइड की टोटल आई है 20,000, लॉस हुआ है 4,000, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड की हेवी क्या रहेगी? देखो, करके देखो. 16,000 क्रेडिट साइड ऑफ टोटल ऑफ रियलाइजेशन 16,000. देखो, हम अगर अकाउंट ओपन करोगे, यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन किया आपने रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20,000, टोटल आ रही है 20,000. तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ अगर 20,000 है तो जो हेवी साइड है वही दोनों साइड लिखते, तो हमने यहाँ पे भी 20 साइड लिया, क्रेडिट साइड सी. लेकिन रियलाइजेशन का लॉस हमें कितना आया? 4,000. इसका ही मतलब क्रेडिट साइड कम रहेगी, लाइट रहेगी अमाउंट उसकी. इसकी टोटल 16,000, तो 20,000 एक्सपेंसेस माइनस 16,000 इनकम, वी गेट द लॉस. ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जिसने अच्छे से किया है उसको बहुत अच्छे से आएगा. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ये दोनों दिया है, तो हमारी थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी टोटल कितनी होगी? 28,000. बस ये दोनों के टोटल करो, ये दोनों को कहलाते हैं थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटी. क्रेडिट साइड ऑफ टोटल रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या मिलेगा हमें? 5,000. डेबिट माइनस क्रेडिट, सो क्रेडिट माइनस डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट साइड हेवी है, दैट मीन्स इनकम साइड हेवी है, माइनस डेबिट साइड, विल गेट द 5,000. डेबिट साइड ऑफ टोटल
क्रेडिट साइड ऑफ टोटल अगेन कैश ब्रॉट, अभी मैंने आपको एक पीछे अगर आप जाओगे स्लाइड में तो मैंने अकाउंट ही ओपन करके बताया था। तो डेबिट साइड 51,000 थी, उसने कैश लेकर आया 17,000, तो क्या आएगा, माइनस आएगा 34, इतनी उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी होगी। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, आई थिंक इसमें बताया था मैंने, गिव वन वर्ड में शायद टेबल ही ओपन करके बताया था आपको, ठीक है, नहीं कैलकुलेशन में बताया था, जो कैलकुलेशन था उसमें बताया था। अगेन सेम कैपिटल डेफिशिएंसी, अगेन वी हैव टू राइट हियर कैपिटल डेफिशिएंसी। सो कैश ब्रॉट बाय इंसॉल्वेंट एक्चुअली लॉस था इन 21, बट उसमें से कैश उसने दे दी 7,000, तो एक्चुअल कैपिटल डेफिशिएंसी आई 14,000। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, अगर आपने प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की होगी तो ये आंसर आपको आएगा। प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। 15 या 20 मार्क्स शायद ऑब्जेक्टिव्स को होंगे हमारे बोर्ड में, अभी तक क्लियर डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे ही पेपर पैटर्न आएगा मैं आपको इमीडिएटली एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फ्रेंड के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिए, बाय।